So the topic which we have to start is arrays, and this was a topic where we left at actually our previous discussion. So I am just going to explain you how we can make use of arrays in Bash programming. One thing which is important to understand is Bash is not supporting two-dimensional array. So we have to restrict ourselves to the discussion of single-dimensional array only, but it is giving too much flexibility as far as arrays are concerned. And you will see some very very good features which are not available by the way in other languages. It's very easy to find out the dimension etc. in case of a bash programming. So whenever we have to declare the array, or whenever we have to make use of array, the statement that we make use is declare. So we can declare the array variable with the use of -a, and let us suppose the name of my array is ARR. So when we are giving this, what is happening? We are defining this variable array as declare. You must be knowing that in functions too, I told you that we can make use declare to declare the variables inside the function. And an alternative of that was local also in the function. So here we have to declare minus with the -a option. You have to declare the array variable. And when we are declaring it on command line, you know that this array ARR variable will be defined in context to the current session of this shell. Now you have the option of assigning the values to this ARR variable. As we have seen in case of Java and C or C++, that the array is always starting with the index value 0. So the same thing is true with this also, that we are having arrays starting with 0 onwards. But you also have the option of skipping certain index values, which is not possible in case of Java, C or C++. So we'll see the example, like if you wish to assign any value, sorry, to the variable ARR. So you can directly write ARR 0, and suppose we are assigning 12 to this variable. Similarly, we may assign 13. Similarly, we may assign 14. So all these variables, you know that they are user defined variables, and they exist in the current bash session. Now if I wish to access them for displaying the values stored in these variables, we have to make use of this notation, that inside the curly bracket you have to write the variable in this way. So when I display this ARR 0, I am getting the value 12 on the screen. Similarly, I can also make use of this, and this is also possible. And it is also possible that you can skip some of the index values. For example, 0, 1, 2 we have assigned, and let us suppose to 14 we are assigning 15. Sorry, to index value 4 we are assigning 15. Now if suppose I am displaying ARR, and let us suppose I am giving 3. Now 3 actually we skipped, so there is no value or no variable existing with the name ARR3. If you wish that all the elements which you have assigned to array, they should be printed on screen in a single go, so that you can do by just using echo, and then you can make use of again dollar and then ARR. Then inside the square bracket you have to use @. So you know all the values we are getting in a single go on the screen, 12, 13, 14, 15. These were the 4 values that we have assigned to ARR variable, which we are treating as an array. Now if you are interested to know how many elements actually are there in the array, I mean what is the length of that array, so you have to simply precede this with the hash sign. So when you do that, we are getting 4. That means we are having only 4 values assigned to the array. Yeah, you can say that we are having only 4 elements in this array. Okay.
So you know that now you are accustomed of using at the rate of to handle multiple values, because you know that when we are using command line values, when we give command line values, and inside the script, if we wish to find them in the single inside the script we wish to display them in a single go, so we may make use of either asterisk or at the rate of. At the rate of is more appropriate because it takes care of those values also which are having multiple words. For example, we have taken this array as a numeric array because we have assigned some numerals to this array variable. But it is also possible that this array may have some strings also. So if we are having strings like Madan Mohan Malviya, so we have the option of assigning Madan Mohan Malviya to three elements of array, as ARR0 is Madan, ARR1 is Mohan, and ARR2 is Malviya. And it is also possible that when we are including within double inverted commas Madan Mohan Malviya, and let us suppose we are writing ARR0, so the entire string is getting assigned to element ARR0 only. So ARR0 will be a string comprising of three words Madan Mohan Malviya. आप जब भी ऐसा करते हैं और अगर बाद में आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट यू गो फॉर एट द रेट ऑफ, बिकॉज एट द रेट ऑफ इज टेकिंग केयर ऑफ दिस फैक्ट आल्सो वेदर element is having single words or multiple words, whereas in case of asterisk it is not taken care of. It is treating everything, every word as a single element. तो आपको जब भी ऐसे एक्सेस करना हो तो आप उसमें जो है एट द रेट ऑफ का ही यूज करें. बट alternatively it is also possible that, like here in our case, there is no harm, like you can make use of asterisk also. We are getting the same answer. Similarly, if we are interested to display only the values on screen, it is also okay. ठीक है, तो आप इसमें से कोई यूज कर सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि अगर कभी ऐसा हो कि उसमें मल्टीपल वर्ड्स हो किसी सिंगल एलिमेंट में, तो ऑलवेज मेक यूज ऑफ ARR एट द रेट ऑफ. एट द रेट ऑफ का हम जो है एग्जांपल एक बार और आपको बताएंगे कि कैसे इसका असर पड़ता है कि व्हेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ एट द रेट ऑफ इन कॉन्ट्रास्ट टू एस्टेरिस्क सिंबल. ठीक है, सिमिलरली यू नो दैट कि अगर आप डिक्लेयर नहीं भी करते हैं इस ARR वेरिएबल को एज ए एरे, तब भी हम इसको जो है एरे जो है यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको असाइन कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं लिखता हूं A0 is equal to, and if I am writing Madan, तो इट इज एक्सेप्टेबल विदाउट मेकिंग डिक्लेरेशन ऑफ A एज एन एरे एलिमेंट. ठीक है, तो आप उसको बिना डिक्लेयर करे भी इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं. बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट जब भी आप एरे को यूज करें तो उसमें ये जरूर लगाएं. उसके अलावा अब इसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 0 से, एंड इट गोज टू अ वेरी वेरी हाई वैल्यू व्हिच इज अ पॉजिटिव इंटीजर. एंड इफ आई read out that number is very big dimension, it's 5991479377791. I mean, this much bigger index you can have in the array. So you can imagine ki how much bigger dimensions we can have in the arrays which we are handling with the use of bash. जितने भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, दे आर सपोर्टेड ऑन इंडेक्स वैल्यूज, मतलब उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन सब हो सकता है. और दूसरा, इसमें एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो ओनली द indices that you have assigned to array, so that can also be done by this way. So you know that we have made use of ARR0, to that we have assigned 12. जो 1 इंडेक्स था उसमें 13, जो 2 था उसमें 14, उसके बाद जो 3 था उसको हमने स्किप कर दिया था, और 4 पे जो है वी हैव असाइंड 15. तो यहाँ पे जब आप इसको देख रहे हैं इको डॉलर एंड देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ARR एट द रेट ऑफ, तो इसमें आपको सारे के सारी जो वैलिड इंडेक्स वैल्यूज हैं दे आर गेटिंग डिस्प्लेड, एंड राइटली दे आर डिस्प्लेड एज 0, 1, 2 एंड 4 बिकॉज 3 इज नॉट देयर. ठीक है, 3 स्किप्ड है. तो इज इट ओके? देन इसमें आगे फर्दर जो है, जैसे मैं अभी स्ट्रिंग्स का आपको बता रहा था कि हम लोग स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं. सपोज इफ आई एम राइटिंग A1 इज इक्वल टू एंड मोहन मालविया,
अब इसको अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो देखिए उसको वैसे ही डिस्प्ले करेंगे जैसे न्यूमेरिक में होता है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। इवन ये भी पॉसिबल है कि एक एरे के अंदर आपने न्यूमरल्स और स्ट्रिंग दोनों असाइन कर रखी हैं। दैट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज देयर इन केस ऑफ जावा और सी प्लस प्लस बिकॉज वी मेक प्रायर डिक्लेरेशन ऑफ द एरे वेरिएबल। सो वी डिफाइन इट एज ए एरे ऑफ स्पेसिफिक टाइप। तो जो भी आप टाइप डिफाइन करते हैं दैट इज पुटिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ दैट एरे विच इज नॉट देयर इन केस ऑफ बैश प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग और वो दोनों असाइन कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जो ऑपरेशंस होंगे वो अगर आपने स्ट्रिंग असाइन करी तो स्ट्रिंग हैंडलिंग टाइप के ऑपरेशंस होंगे। फिर यहाँ पे अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहें तो अगेन आई कैन मेक यूज ऑफ ए देन एट द रेट ऑफ देन करली ब्रैकेट। तो यू सी मदन मोहन मालविया वी आर गेटिंग। और अगर इसी में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं तो यू आर गेटिंग द वैलिड इंडेक्सेस। द फर्स्ट इंडेक्स वाज A0 एंड सेकंड वाज A1। तो ये दो इंडेक्स आपके जो है इसमें असाइन हो सकते हैं। अगर आप एक ही बार में किसी एरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, जैसे आपको याद होगा कि हम लोग सी वगैरह में लिखते हैं कि एम्प्टी ब्रैकेट के साथ वी यूज टू राइट जैसे इंट ARR एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर जो कोई डायमेंशन लिखेंगे अगर कोई इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, और अगर इनिशियलाइज कर रहे हैं तो ARR और एम्प्टी ब्रैकेट इज इक्वल टू और उसके बाद करली ब्रेसेस में वी यूज टू राइट द एलिमेंट्स, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम देते हैं उसके अकॉर्डिंगली डायमेंशन जो है अपने आप ARR के अंदर सेट हो जाती है। यहाँ पे यू डोंट नीड टू यूज दिस ARR, आप सीधे उसको जो असाइन करें। यस समबडी इज राइटली कोटिंग दैट आई एम अनएबल टू see the names actually because parallelly they are getting and I have to conduct my class also। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी कुछ आपको वैसे नहीं दिखा कर रहा हूँ, मतलब आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन यस द सिंटैक्स वाज राइटली कोटेड बाय समबडी इन द मैसेज सेक्शन। तो इस तरीके से हम सीधे असाइन कर सकते हैं। दूसरा असाइनमेंट ये भी हो सकता है कि आप इसके अंदर जो है इंडेक्स वैल्यूज के साथ, ओके विशाल आई हैव सीन योर मैसेज, आप इंडेक्स वैल्यू के साथ भी इसको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सपोज आई एम असाइनिंग 1 इक्वल टू एंड लेट अस सपोज आई एम असाइनिंग 12। पहले तो इसको अनसेट कर देते हैं। अनसेट का मतलब है यू आर अनसेटिंग द वेरिएबल, तो वेरिएबल का जो है खत्म हो जाता है उसके बाद, ठीक है। अब उसके बाद ARR इज 0 इज इक्वल टू, अब इसमें हम असाइन कर रहे हैं लेट अस सपोज पहला इंडेक्स जो है उसमें हमने वी आर असाइनिंग 12, उसके बाद दूसरा इंडेक्स जो है सपोज 0 है उसमें असाइनिंग 13, उसके बाद तीसरा इंडेक्स जो है वो स्किप्ड है उसमें अगर हम लोगों ने असाइन किया लेट अस सपोज 14। तो आप ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूं इको डॉलर एंड देन ARR, so 13, 12 and 14 these three values we have got and rightly they have sequenced properly, क्योंकि 13, 12 और 14, क्योंकि 0 जो है हमेशा लोअर इंडेक्स से शुरू करेगा, तो 0 जो है वो 13 हो गया, 12 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, और 4 पे जो है 4 इंडेक्स पे 14 आ गया। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसमें ये भी हो सकता है कि हमने कुछ एक में इंडेक्स असाइन ही ना किया हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये तो कमांड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और उसके बाद सपोज वी आर असाइनिंग 15। तो जो पहला वाला एरे है उसी में हमने सारे एलिमेंट्स उसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए और उसके बाद एक एडिशनल वैल्यू दे दी 15। सो दिस इज आल्सो अ वैलिड वे ऑफ increasing the array. It is also possible that two arrays you can merge together to get the third array, क्योंकि आपने थर्ड एरे का नाम जो है ARR3 दिया इज इक्वल टू, और ARR1 और ARR2 के दोनों के जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ब्रैकेट के अंदर। तो आप जब इसका एक्सपेंशन होगा जो बैक कोट्स के अंदर आपने कमांड के रूप में दिया है वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद एडिशनली 15 भी आ जाएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ARR को रीअसाइन हो गए, ठीक है। So once again we can check the value
So now you see we are having 13, 12, 14 and 15. And now let us suppose, let us check the index values. ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 इसलिए आ गए क्योंकि जब ये सब्स्टिट्यूशन हुआ इसके अंदर इको ARR से, तो उसमें कोई आपकी इंडेक्स वैल्यूज नहीं थी 1 और 0 और 4, वो यहाँ पे डिस्प्ले क्या हुआ 12, 13 और 14, फिर 15 उसमें एडिशनली हमने दिया, तो जो है ये सारी वैल्यूज इसको असाइन हो गई और इंडेक्स जो है वो फिर से 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो गए। तो आई बिलीव कि ऐसे बहुत से ऑपरेशंस हैं जो आप इसमें इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक एरे जो है इसमें एसोसिएटिव टाइप का होता है जिसमें यू हैव टू मेक यूज ऑफ कैपिटल ए। अब इसमें अगर आप सपोज इफ आई एम डिफाइनिंग लिस्ट, so it is possible that I can write list, and if I am writing color is equal to, it is possible that you can assign red. तो अब इसमें जो यूजुअल वे है कि जो इंडेक्स वैल्यूज होती हैं वो आपकी इंटीजर्स होती हैं 0, 1, 2, 3, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें जो है स्ट्रिंग्स को भी यूज कर सकते हैं या वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि सपोज इफ आई एम राइटिंग, पहले तो अनसेट कर देते हैं इसको एंड वी कैन इनिशियलाइज इट, वी कैन री इनिशियलाइज इट। तो हमने इसको मान लीजिए डिक्लेयर किया और उसके बाद इसको री इनिशियलाइज किया, तो वी आर राइटिंग लिस्ट इज इक्वल टू, एंड नाउ वी आर राइटिंग सपोज इन द ब्रैकेट आई एम राइटिंग कलर इज इक्वल टू एंड इट इज रेड, देन item is equal to, let us suppose table, then vehicle is equal to suppose car. अब अगर हम इसको सीधे चेक करें तो वी कैन राइट इको एंड देन डॉलर एंड देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड देन वी कैन राइट लिस्ट एट द रेट ऑफ, so we are getting red car table, and if you are interested to display only the indices of this list, so we are getting color, vehicle and item. तो आप एक चीज है इसमें कि अगर आप कोई न्यूमेरिक एरे हैंडल करते हैं या यूज करते हैं तो उसमें यस तो उसमें जो है ये होता है कि आप जो सीधे बिना डिक्लेयर करे उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे अदर देन इंडेक्स जो है न्यूमेरिक के अलावा अगर कोई यूज करते हैं तो उसमें यू हैव टू डिक्लेयर दैट एरे एज एसोसिएटिव टाइप वेरिएबल। ठीक है, तो एसोसिएटिव जो एरे होते हैं उनको डिक्लेयर करना कंपलसरी है, हालांकि इसका यूज जो है हम लोग प्रैक्टिकली बहुत कम करते हैं, बट दिस कंसेप्ट इज देयर, कंसेप्चुअली इट इज देयर। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कुछ ऑपरेशंस और देख लेंगे इसमें कि क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि पहले तो मैं जो हमारे एग्जिस्टिंग कोई एरे है उसको डिस्प्ले कर देता हूं, केवल काउंट डिस्प्ले करना है तो हैश लगा देते हैं और उसके साथ लेट अस सी द प्रीवियस एरे इफ इट इज देयर। ठीक है, तो ये एरे है। अब इसमें फर्दर कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि इफ आई एम यूजिंग से कोलन साइन एंड देन सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ इंडेक्स वैल्यू 2 एंड टोटल 2 नंबर्स आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। तो आप इसको समझें कि जैसे 0, 1, 2, तो 0 जो है वो तो 13 के लिए हो गया, 12 के लिए 1 हो गया और 2 इंडेक्स किसका हो गया 14 का। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, जैसे नॉर्मल सब स्ट्रिंग्स में क्या होता है, यू गिव द इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम वेयर दैट सब स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग एंड फ्रॉम दैट इंडेक्स ऑनवर्ड्स हाउ मेनी एलिमेंट्स आर टू बी काउंटेड, दैट काउंट यू आर गिविंग इन द सेकंड एलिमेंट। सो व्हेन आई गिव 2 दैट मींस आई एम इंटरेस्टेड टू display the elements starting with index value 2. So you know that since we are starting with 0, so 0 is 13, 1 is 12 and 2 is 14. So right from 2 and how many elements we wish to display,
इट इज 2 ओनली, तो 14 एंड 15 बोथ आर गेटिंग डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, दोनों ही डिस्प्ले हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है इसमें, अगर आप खाली जैसे हम लोग स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं, लेट अस सपोज अगर हम स्ट्रिंग असाइन करते हैं मदन मोहन मालविया, तो ये भी एक तरीके से जो है एरे की तरह ही है, जिसका जो इंडेक्स वैल्यू 0 है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बेस होता है एरे का वो वही होता है उसकी एड्रेस जो कि पहले एलिमेंट की एड्रेस होती है। तो यहाँ पे इस चीज को भी हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इसको जैसे एरे में। इसीलिए मैंने कहा था कि शुरू में आपको बताया था जब पैलिंड्रोम का प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे कि इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग वी कैन मेक यूज ऑफ दिस नोटेशन। So now it must be, I suppose, clear that here we are using the variable str in the same way as we do in case of arrays, because यहाँ पे क्या है, केवल सिंगल डायमेंशन के सिंगल एलिमेंट की एक एरे है जिसमें आपने जो है पहला एक एलिमेंट असाइन कर रखा है। तो अभी अगर आप इसको करें तो 20 जो है यू आर गेटिंग द लेंथ ऑफ दैट मदन मोहन मालविया स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन, तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसी में अगर हम क्या करते हैं कि सपोज इफ आई एम इंटरेस्टेड टू start with index value 2 and let us suppose I wish to go up to 10. Okay, just a minute. So it is DAN Mohan because we are starting with index value 2. तो 0 जो है वो M के लिए है, A जो है वो 1 के लिए है और D जो है वो 2 के लिए है। तो वहां से onwards including 2 total 10 characters we have to count. So DAN, these are the 3 characters, 4th character is blank. Then Mohan 5, 6, 7, 8, 9, 10 blank, जो उसके आगे एक और एडिशन हुआ होगा वो डिस्प्ले यहाँ पे हुआ, लेकिन क्योंकि हमें दिख नहीं सकता ब्लैंक स्पेस, तो DAN मोहन ये जो है डिस्प्ले हो गया। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर सपोज लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ array with the name A and I am initializing it with some values, maybe Madan Mohan मालविया गोरखपुर यूपी। सो 0, 1, 2 एंड 3, क्योंकि चार ही इसमें एलिमेंट हैं और चारों एलिमेंट, क्योंकि चौथा एलिमेंट जो है आपका वो इज अ मल्टी वर्ड स्ट्रिंग गोरखपुर यूपी उसमें है। अब अगर सपोज इफ आई एम यूजिंग दैट नोटेशन विच आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, कि अगर हमें एक पर्टिकुलर लेंथ से उसको काउंट स्टार्ट करना है, जैसे मान लीजिए इंडेक्स वैल्यू 2 से और केवल हमें 2 एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मालविया गोरखपुर यूपी, क्योंकि 2 एलिमेंट थे, गोरखपुर यूपी एक एलिमेंट था, और क्योंकि हमने सेकंड इंडेक्स से चाहा था इंडेक्स वैल्यू 2 से, तो 0 जो था वो मदन था, 1 जो था वो मोहन था, 2 जो था वो दैट वाज मालविया। सो वी स्टार्टेड विद मालविया एंड वेंट अप टू गोरखपुर यूपी, दैट वाज द सेकंड एलिमेंट। सो टोटल 2 एलिमेंट्स वी हैव डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। अब अगर इसमें सपोज हम अगर चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को जो है भी उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जैसे A0 अगर हमने दिया तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एरे इन टोटलिटी, रादर वी आर टेकिंग द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज मदन, एंड इन दैट वी आर टेकिंग 2 to 2, दैट मीन इंडेक्स वैल्यू 2 to 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी विश टू कट। तो ये यहाँ डिस्प्ले हो गया DA के नाम से। तो आप देखें कि वो मदन में जो है 0M, A जो है 1, फिर D जो है वो 2 एंड फिर देन A जो है वो 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 से इंडेक्स वैल्यू 2 से स्टार्ट किया और 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिंस वी आर कटिंग, सो इंडेक्स वैल्यू 2 एंड इंडेक्स वैल्यू 3 ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग, वो आपको जो है वो कैरेक्टर जो है आपके डिस्प्ले हो गए ऑन स्क्रीन। तो ये भी हो सकता है कि व्हेन वी आर यूजिंग एट द रेट ऑफ, this operation is getting applied to the entire array, and then we are counting this 2 or the number which is suffixing this 2 after that colon 2, that means 2 number of elements,
तो ये पूरे के पूरे एरे के ऊपर अप्लाई होगा। तो देन ये जो एट द रेट ऑफ के साथ जो है 2 का मतलब है कि वी आर स्टार्टिंग विद इंडेक्स वैल्यू 2, ठीक है। तो इसका मतलब है थर्ड एलिमेंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर ये इसके अंदर एक आपने इंडेक्स वैल्यू पहले से फिक्स कर दी, जैसे A0 मैंने सेकंड एग्जांपल में फिक्स करी, इसका मतलब आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट एरे हैविंग द इंडेक्स वैल्यू 0। तो A0 के बाद अगर आप 2:2 कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द एंटायर एरे, रादर दैट इज एप्लीकेबल टू द स्ट्रिंग व्हिच वी आर रेफरिंग टू, एंड दैट स्ट्रिंग व्हिच वी आर रेफरिंग टू इज स्टोर्ड इन A0। तो उसमें जो सेकंड इंडेक्स से और 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं दैट वी आर रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग ऑन स्क्रीन। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ ऑपरेशंस हैं जो आप जब प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे तो यू विल फाइंड देम यूजफुल इन सम ऑफ द एप्लीकेशंस। जैसे यहाँ पे वन मोर आई एम टेलिंग यू। तो आप इसमें देखें कि जहां जहां ए एन जो अकरेंस था सीक्वेंस का, दैट वी हैव रिप्लेस्ड विद कैपिटल ए एन। वो कैपिटल ए एन के साथ हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। और एक चीज है कि अगर आप इसके बाद जो है कैपिटल ए एन नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है इट इज सिमिलर टू डिलीशन ऑपरेशन। तो आप देखें कि उसमें से वो वाला गायब ही होगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यू आर डूइंग, जैसे फाइंड एंड रिप्लेस होता है। तो इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग टू बी रिप्लेस तो उसके मतलब वो फाइंड होकर वो डिलीट होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो भी कुछ हो रहा है दैट इज मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्ले, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज हैपनिंग एज पार्ट ऑफ इको कमांड। These things are not getting permanent. If you have to make them permanent, so of course you have to hold the values in some variable. तो आप उसको is equal to और फिर उसके बाद जैसे मेटा कैरेक्टर्स हम लोग यूज करते थे कि कमांड सब्स्टिट्यूशन से इसको यूज करेंगे और तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। वरना तो डिस्प्ले पर्पस के लिए है, अदरवाइज तो जो आपकी एरे है वो तो इंटैक्ट है, उसमें कोई अंतर थोड़ी ना हुआ। ये तो केवल डिस्प्ले में उसने आपको जो है ए एन जो है रिमूव करके दिखा दिया। जैसे स्टिल यू सी मदन मोहन मालवीय गोरखपुर यूपी पूरा ही आ रहा है, वो टिल्ट साइन सिंस बाय मिस्टेक आई टाइप, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट इज कमिंग। तो आई बिलीव इट इज ओके नाउ हाउ वी आर हैंडलिंग द एरेज। और इसके कुछ ऑपरेशन जो हैं वो हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले एक हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। वेरी कॉमन एग्जांपल इज द एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग। तो हम लोग इसमें सॉर्टिंग करके देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं सॉर्टिंग का।
सेगमेंट्स में आपको मैं एग्जीक्यूट कर करके इसको चेक करते रहते हैं. Let us suppose the elements are 4. First element is 11, then 22, 33 and 44. ठीक है. तो जो भी आपकी ओरिजिनल एरे थी वो हमने बाई चांस मैंने जो वैल्यूज दी हैं वो सारी ऑर्डर्ड हैं, बट एनीवेज without doing any operation or any processing, we are simply displaying all the input values on the screen in the unsorted array form. ठीक है, तो सीधे उसको हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया है. सो जस्ट टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट हम इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं. अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि आई हैव नॉट मेड एनी प्रायर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल a एज एन array as it is mandatory in other languages. So here you can skip that part, or alternatively you also have the option of writing declare minus a and then a as an array. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे it could be better to use read instead of echo over here, और echo को हम लोग नीचे यूज कर लेंगे. तो सीधे इसको read में ही जो है एक मैसेज डाल देते हैं.
Now let me check. This is the swap operation. We are simply checking if one element is, we are taking one by one all the elements, for considering the first element, comparing it with all the remaining elements, and then wherever we are finding that the first element is greater than the next element or any element in the list, we are simply swapping the values. So you know that all the small elements, they are bubbling up. So at the end of this process, we'll be having all the elements sorted in ascending order. तो इसमें जो है, now let me run this program. Suppose 5. जस्ट मिनट में एक बार चेक कर लूँ वाई इट इज गिविंग डॉलर, क्योंकि मुझे कोई मिस्टेक करी वहाँ पे. Yes. So let us suppose 5 elements we have given. 1 is 12, then 3, then 1, then 2, then 5. फिर से एक बार चेक कर लेते हैं. T is equal to $A $5. Because now $A is equal to $A $J. $J is equal to T. Yes. Rightly pointing out, Vishal. It's good that you are keeping track of everything when you are studying online. $T I forgot to mention over here क्योंकि $T से ही तो value आएगी. So once again we can check the execution. Let me check with a smaller value. Why to give? सॉर्टेड रिस्पॉन्स. तो ये थोड़ा सा इसमें वंस अगेन आई एम ओपनिंग दैट कोड. थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे राइट नाउ आई फॉरगॉट टू मेंशन डॉलर बिफोर टी. आप जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे यू हैव टू टेक केयर. एक चीज और है इसमें विच इज वेरी पावरफुल. आई टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हेनेवर वी हैव टू मेक द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स वी हैव टू मेक यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट. That I told you because when we studied a number of operators in context to bash programming, I told you that we can make use of this usual notation of greater than symbol, greater than or equal to, less than or equal to, as we do in case of C or C++ or Java. But there you have to use double small braces, then only you are allowed to make use of it. अदरवाइज जो न्यूमेरिक क्वांटिटीज हैं उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा. कुछ इस तरीके का सिंटैक्स जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा. इफ देन डॉलर के साथ जो है कोई वेरिएबल और उसके बाद ग्रेटर देन के लिए -GT. ठीक है, डॉलर बी. तो इस तरीके से आपको कुछ मेंशन करना पड़ेगा. उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर स्ट्रिंग हैंडलिंग करनी है तो वो स्मॉल ब्रेसेस में ना करिएगा, क्योंकि उसके लिए फिर आपको यू आर बाउंड टू मेक यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स. ऐसे ही जो फाइल हैंडलिंग ऑपरेटर्स थे, जैसे कि आर के साथ जो है फाइल नेम, ठीक है, तो वो ये इंडिकेट करता था कि फाइल वो ट्रू तभी होता था व्हेन फाइल एग्जिस्ट एंड इज रीडेबल. एक्स के साथ फाइल नेम ट्रू ओनली व्हेन फाइल एग्जिस्ट एंड इज एग्जीक्यूटेबल. तो ये जो ऑपरेटर्स थे जो आपको अलग से बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं. अभी अगर एक इसमें प्रॉब्लम है कि मान लीजिए सपोज इफ आई एम आस्किंग यू टू sort all the elements which are string type. So you may be having a string like Abhinandan. Now Abhinandan is very long string lengthwise, but it is always smaller than Zafar because in the collating ASCII sequence Zafar is always having the higher value since it is starting with alphabet Z. तो अगर हम ASCII वैल्यू से कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि इफ वी हैव टू राइट द प्रोग्राम इन C
और C++, so there you have to take care of this fact कि आपको कोई फंक्शन यूज करना पड़ता है, जैसे strcmp इज वेरी कॉमन फंक्शन स्ट्रिंग कंपेयर के लिए जिसको हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग वाज नॉट अलाउड। यहाँ पे जो है आप स्ट्रिंग हैंडलिंग कर सकते थे, लेकिन उसमें भी ग्रेटर देन वाला सिंबल नहीं था, क्योंकि वट एवर ऑपरेटर्स वी हैव एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट टू स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें क्या था, z था कि स्ट्रिंग जीरो लेंथ की है, ठीक है, n था नॉन जीरो लेंथ की है, फिर उसके अंदर कंपैरेटिव में इक्वल टू साइन था, जैसे स्ट्रिंग इक्वल टू RTS, ठीक है, ये इक्वल टू भी चलता था और डबल इक्वल टू भी चलता था, फिर नॉट इक्वल टू भी चलता था, लेकिन ग्रेटर देन उसमें नहीं था। अभी इसमें क्या है कि देयर आर सम एनहांसमेंट्स इन द एडवांस्ड वर्जन ऑफ बैश, वो यहाँ पे भी एक्सेप्टेबल हैं। आप यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के लिए भी इक्वली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग डबल ब्रेसेस, इस तरीके से। और जब आप यहाँ पे डबल ब्रेसेस यूज कर रहे हैं तो इवन इट इज मेकिंग यू, इट इज ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू द नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी और जावा। और वहाँ पे जो हम लोग ऑपरेशंस यूज कर रहे थे, ग्रेटर देन, लेस देन, जैसे यहाँ पे तो पहले मैंने आपको बताया था कि इफ यू आर यूजिंग सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट देन यू आर बाउंड टू मेक यूज ऑफ GT ग्रेटर देन के लिए, और -GE ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए, तो ये सब आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डबल इसमें ये लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब होता है कि नाउ इट इज मोर पावरफुल एंड इट अलाउज यू टू मेक यूज ऑफ ग्रेटर देन साइन, लेस देन और इक्वल टू साइन, और इवन इट इज useful for making comparison of two strings in the collating sequence of ASCII values, that is also okay। तो इस प्रोग्राम को अगर हमने इतना मॉडिफाई किया है, एंड आई एम सेविंग इट एंड आई एम कमिंग आउट ऑफ इट, एंड नाउ वी शुड रन दिस प्रोग्राम फॉर स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो अगर मान लीजिए मैं सपोज आई एम सेइंग 5, देन द फर्स्ट स्ट्रिंग व्हिच आई एम गिविंग इज सूरज, देन अमित, देन जफर, देन जैकब, एंड देन मे बी कोई और भी, जैसे मृणाल। तो अनसॉर्टेड एरे और सॉर्टेड एरे में डिफरेंस आप देख लीजिए। यहाँ पे इसने जो कंपैरिजन किया है वो ASCII वैल्यूज के बेस पे या उसके आधार पे कंपैरिजन किया है। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग अमित, जैकब, मृणाल, सूरज एंड जफर इन द राइट सीक्वेंस ऑफ सॉर्टिंग। तो that's why we are getting them on the screen। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि when you are asked to write a program where you have to make the string comparison and you have to sort them as per the ASCII value of different strings, then we can make use of these double square brackets, and it is giving some more power to bash programming, and there it is also possible that we can make use of collating sequence of ASCII values, ठीक है, तो उनका जो है comparison हम कर सकते हैं। So now this is all about arrays, and I wish कि इसमें जो है मैं आपको प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर लूँगा in the WhatsApp group, and I expect कि you should write the programs based on these concepts, और इसमें जो है कुछ और प्रॉब्लम्स जो है we'll see in the next